Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video, that is disaccharide. Before that, I have already taught about the monosaccharides in my previous video. Now let's start with disaccharide. As the name suggests, di means two and saccharide means sugar. So a molecule in which you will find two sugar units, two monosaccharide units. That substance, that molecule is called disaccharide. Next is whenever these small units combine. जब भी ये छोटे छोटे units combine होते हैं, that time they give up carbon, that time they give up water molecule. ठीक है, उस समय जब भी दो छोटे छोटे यूनिट कंबाइन हो रहते हैं उस समय इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन प्रोसेस. जस्ट रिमेंबर दैट. चाहे हम लिपिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जहां पे भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो रहे होते हैं टू मेक अ लार्जर मॉलिक्यूल, दैट टाइम वाटर विल बी रिलीज्ड एंड इट डिपेंड्स. एक वाटर मॉलिक्यूल, दो, तीन, ये डिपेंड करता है कौन से मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट हो रहे हैं. फाइन. सो दिस इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस. In this disaccharide, we are going to discuss about three disaccharides. Number one is maltose, lactose, and the third one is sucrose. One by one we are going to discuss about it. क्योंकि ये सारे disaccharides हैं, तो ये कौन से monosaccharide unit से बने हुए हैं and how they are making a reaction, उस समय कैसे bonding हो रही है, किस कार्बन से वो joint हो रहे हैं, all those things we are going to discuss here. So first topic, first disaccharide which we will be discussing is maltose. अब जब हमने ये बात शुरू कर दी है तो इसके लिए पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. द फॉर्मूला इज, आपको पता है C6H12O6. ये एक मोनोसैक्राइड यूनिट का फॉर्मूला है. अगेन दूसरा मोनोसैक्राइड भी यही होगा. जब ये रिएक्ट हो रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक द फॉर्मूला शुड बी? C6 तो इट विल बी C12, H12, it should be 24, O should be 12. But जैसा कि मैंने आपको बताया कि one water molecule will be released, so अगर हम water molecule release करवाते हैं तो यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो फॉर्मूला will be 2 and यहाँ से जब हम एक ऑक्सीजन रिलीज करेंगे so फॉर्मूला will be this. तो ये फॉर्मूला कब आया? जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ disaccharide. Just remember that, don't forget it. Okay, this is important. Next is maltose. maltose जो है वो दो मोनोसैक्राइड यूनिट से बनता है. Which are those monosaccharide units? Glucose प्लस ग्लूकोज. तो हमको दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना पड़ेगा टू गेट माल्टोज. नाउ लेट्स ड्रॉ द फॉर्मूला. पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ड्रॉन द चेन स्ट्रक्चर. ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने ग्लूकोज का ड्रॉ कर दिया है. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेंगे in a reaction to form maltose. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो maltose होता है हम उसको malt sugar भी बोल सकते हैं. तो ये जो भी grains होते हैं, barley, wheat, इन सब में ये जो sugar है ये थोड़े amount में present होता ही है. Now this is, let me rub it, एक, हाँ. So these are the two glucose molecule. So this is one glucose and this is the another glucose. Now they will make a bond. For bonding
the bonding will be between the first carbon of one sugar and fourth carbon of the other sugar. दूसरे sugar के fourth carbon के साथ वो combine होगा. For that, the water molecule will be released like this. जो भी water molecule है वो release होगा इस तरीके से. HO from fourth and hydrogen from the first one. Likewise, water will be released. अब water release हो गया तो मैं इसको rub कर देती हूं. Water molecule release हो गया है इसलिए. और अब इसकी proper presentation के लिए I will write the oxygen between these two. इस तरीके से. So you see here that first carbon और fourth carbon जो है इनकी through bonding हो रही है and water is released. One water molecule is released. अब आप एक चीज देखेंगे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, चेन, ये ओपन चेन रिएक्शन है, चेन स्ट्रक्चर है. इसमें आप कार्बन नंबर देखिए, ठीक है. अब आप देख रहे हो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है. फाइन, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है एंड हियर एल्डिहाइड ग्रुप वाज देयर जो कि बॉन्डिंग करने में यूज हो गया. सो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो निकल गया फर्स्ट कार्बन का, बट स्टिल जो दूसरा कार्बन है उसका एल्डिहाइड ग्रुप इंटैक्ट है एज इट इज है. दिस इज द रीजन वी विल कॉल malt sugar or maltose reducing sugar. What is reducing sugar? ऐसा sugar जिसमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप इंटैक्ट हो. एक भी कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे. तो पहले वाले कार्बन का तो एल्डिहाइड ग्रुप यूज हो गया है, बट सेकेंड कार्बन जो सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका फर्स्ट कार्बन के पास एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी है. नाउ दिस विल बी कंसीडर्ड एज वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं इसे नीट इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर दूं. सो जस्ट रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर 2. तो यहां पे आप देखेंगे थर्ड पे ओरिएंटेशन चेंज हो रही है. सेम हियर, थर्ड पे ओरिएंटेशन चेंज हो रही है. मैंने आपको ये प्रीवियस हेक्सोजेन शुगर के केस में आपको बताया था, बट स्टिल फॉर रिवीजन आई एम टेलिंग यू दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट माल्टोज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लैक्टोज. लैक्टोज कैसे बनता है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, next topic is sucrose. Formula is written. Sucrose can also be called cane sugar. Reason is it is found in a large amount in sugar cane. That is why it is called cane sugar. You will find sucrose in sugar beet, sugar cane, etc. This sucrose is called स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट. आप इसको स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं. इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो फूड होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होता है. दैट इज व्हाई वी कैन इजीली एक्सट्रैक्ट दीज सुक्रोज फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट, क्योंकि वो वहां पे स्टोर्ड होता है एंड वो बहुत अमाउंट में होता है. एंड ये जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है, जब भी प्लांट को जरूरत होती है, in that time it can oxidize that stored carbohydrate and it can get ATP from it. So you can call it the storage carbohydrate. जो सुक्रोज है ये बना होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से. अभी किस तरीके से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन होते हैं सुक्रोज मॉलिक्यूल देने के लिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो पहले हम इसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ग्लूकोज इज हैविंग पायरानोज रिंग एंड ये जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे कार्बन्स होंगे. सो दिस इज ऑक्सीजन,
This is carbon 1, 2, 3, 4, 5 and 6th H, OH, H, OH. थर्ड पे ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, H, OH, H, CH2OH. This is ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जब कंबाइन होता है फ्यूरेनोज रिंग, फ्रक्टोज का जो फ्यूरेनोज रिंग होता है उसके साथ, तो फ्यूरेनोज रिंग हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? वी विल ड्रॉ लाइक दिस. कार्बन 5th और कार्बन 5th के साथ कार्बन 6 ज्वाइंट होता है, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st. 1st एंड 6th पे सेम होगा, दैट इज CH2OH. जो सेकेंड कार्बन होता है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. जो सेकेंड होता है वहां पे C डबल बॉन्ड O होता है, दैट इज कीटोन ग्रुप. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज C विद OH. फिर थर्ड वाला है OH, H, H, OH and here OH. Next, ये हमारा हो गया फ्रक्टोज. सो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज. अब हमें क्या करना है? इनके बीच में बॉन्डिंग करनी है. फॉर दैट बॉन्डिंग व्हाट विल हैपन? हियर वाटर विल बी रिलीज्ड. तो मैं इसको कट करती हूं. Okay, and what you will see here कि ये जो ऑक्सीजन है एज यूजुअल इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. सो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज मेकिंग अ बॉन्ड विद द सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज. सो दिस बॉन्ड इज, आप इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? विच इज प्रेजेंट इन सुक्रोज. इट इज 1,2 glycosidic bond. This is glycosidic bond in case of sucrose. Maltose के केस में क्या था? First carbon of glucose is making a bond with fourth carbon of another glucose molecule. That will be called 1,4 glycosidic bond. So मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर देती हूँ. That is, in case of maltose, it is 1,4 glycosidic bond. So this is all about sucrose. Sucrose में आपने पढ़ा कि इसको हम केन शुगर भी कहते हैं. एंड क्योंकि ये बहुत अमाउंट में स्टोर होता है, रिजर्व्ड होता है एज अ फूड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट. इस चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं पॉलीसैकेराइड टॉपिक को स्टार्ट करूंगी. दैट टाइम आई विल टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर. तो जब भी हम उन टाइप्स की, मेजर टाइप्स की बात करते हैं, उसमें से सुक्रोज जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो भी एक मेजर टाइप है. सो ये बहुत अमाउंट में स्टोर्ड होता है एज अ फूड. जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है. यू कैन सी हियर, एंड द बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड द सेकेंड कार्बन ऑफ दिस फ्रक्टोज. अब क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट कार्बन के पास एल्डिहाइड ग्रुप था, सो फर्स्ट कार्बन के पास जो एल्डिहाइड ग्रुप था इट इज लॉस्ट. एंड फ्रक्टोज के केस में सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप होता है, दैट इज ऑल्सो लॉस्ट. तो ना ही इस शुगर के पास एल्डिहाइड है, ना ही इस शुगर के पास कीटोन है. इसीलिए हम इस शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर नीट. याद रखिएगा क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट एल्डिहाइड था वो भी नहीं है और जो सेकेंड पे कीटोन ग्रुप था फ्रक्टोज का वो भी चला गया है फॉर मेकिंग अ बॉन्ड. दिस इज ऑल अबाउट सुक्रोज.
sorry, this is all about sucrose. Now let's talk about the next, that is lactose. From two monosaccharide units, galactose and glucose. ठीक है, इसमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है. आप इसको मिल्क शुगर बोल सकते हैं क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है शुगर. आपने पढ़ा ही होगा ना, लैक्टोज जो है उससे कर्ड बनता है. तो ये जो शुगर होते हैं वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं इन बैक्टीरियाज को वर्क करने के लिए. सो दिस इज द लैक्टोज मिल्क शुगर. देन आप अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले हम ड्रॉ करते हैं गैलेक्टोज. गैलेक्टोज भी पायरोनोज रिंग होता है गैलेक्टोज के पास. वैसे ही मैं यहां पे भी ड्रॉ कर लेती हूं ग्लूकोज. कार्बन 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 ऑक्सीजन carbon. Then as it is OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, H, CH2OH. Here CH2OH, H, HOH. थर्ड पे ओरिएंटेशन चेंज होता है यहाँ पे HOH, HOH. ठीक है, सो ये हमने बनाया है गैलेक्टोज और ये बन गया हमारा ग्लूकोज. ग्लूकोज के केस में सिर्फ थर्ड नंबर पे ओरिएंटेशन चेंज होता है एंड गैलेक्टोज के केस में थर्ड एंड फोर्थ दोनों में चेंज होता है. नाउ लेट्स सी द बॉन्डिंग हियर. अभी ऑब्वियसली बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में होगा. जब भी बॉन्डिंग होगा यू विल सी दैट this hydroxyl group and here from here this hydrogen will be lost in the form of water molecule. ये चीज आप पढ़ते आ रहे हैं. सो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अब अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके का होगा. ठीक है, सो दिस इज अ पैटर्न ऑफ मेकिंग बॉन्ड बिकॉज यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और यहां पे था, सेम जगह होता है तो हम इस तरीके की बॉन्डिंग करते हैं. बट जस्ट टू शो कि जो ओरिएंटेशन है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो ऑपोजिट था, इसीलिए हमने इस तरीके का बॉन्ड ड्रॉ किया. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसा कि आपने माल्टोज में देखा था. एंड सिर्फ सुक्रोज के केस में जो होता है वो होगा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. माल्टोज एंड लैक्टोज में सेम होगा. अब यहां देखेंगे कि जो फर्स्ट यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब जो कि इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट यहां पे ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इंटैक्ट है, उसको कुछ नहीं हुआ है. सो हम लैक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं. तो हमारे लिए डाइसैकेराइड में रिड्यूसिंग शुगर 2 है. जहां पे भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिख रहा है वो रिड्यूसिंग शुगर है एंड 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड कितने टाइप्स के होते हैं एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स. तो टिल देन यू टेक केयर, कीप लर्निंग, बी सेफ एंड गुड बाय.